Good morning, class 11th. Today we will move on to the next topic, that is the gynosium. Up till now, in the morphology of flowering plant, we have studied about the calyx, corolla, and androecium part. So now we will begin with the next part, that is gynosium. Now we all are familiar with this word gynosium, that this is the female reproductive part of the flower, and commonly this gynosium, it is called as carpel or pistil. We all know, we have studied in our lower classes, in our class 10th also, that a carpel or a pistil consists of three parts: ovary, stigma, and style. Okay, ovary is the basal part, the swollen part. Okay, tube like structure is called as style, and the first part, that is the stigma, where the pollen grain it land. Okay, the part of the carpel which receive the pollen grain, that is called as the stigma. So in the flower, the carpel part, the gynosium part, it is divided further into three parts: stigma, style, and ovary. Stigma is that part where the pollen grain comes and it hold the pollen grain, it will receive the pollen grain. Okay, after that the pollen grain will produce the pollen tube, and that pollen tube, it is carried onto the ovary for the fertilization by the style. So style, what is its function? Style is giving the pathway to the pollen tube to get into the ovary. Ovary is the enlarged basal part. Okay, ovary enlarged basal part है जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट प्रेजेंट होता है. Okay, तो pollen grain it carries the male gamete and ovary it carries the female gamete. तो उनके बीच में क्या होती है? फ्यूजन होती है. क्लियर? तो उस प्रोसेस को कैरी ऑन कराने के लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ ईच ओवरी इट बेयर वन और मोर ओव्यूल्स. हर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, and they are attached to a flat cushion like structure called as the placenta. आप कोई भी फ्रूट ओपन कर देखिए, उसके अंदर जो सीड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो वो जो फ्लैट कुशन लाइक एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा. ओके, नाउ here we will discuss about the various classification of gynosium based on the number of carpels. So when more than one carpel is present and all the carpels they are free, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो सारे के सारे फ्री होते हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लोटस एंड रोज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज apocarpus condition. Apocarpus means, I am again repeating, when the carpels they are free from each other. And on the other hand, when these carpels they are fused together, that condition is called as syncarpus condition. syncarpus के examples क्या आ गए हमारे पास? mustard and tomato. ओके, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब पोलन ग्रेन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, दैट इज़ जो एग है, जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं दे डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी इट डेवलप्स इनटू द fruit. So we can say that seed is the ripened ovule or mature ovule and fruit is the ripened ovary, or we can say mature ovary. Clear? So now we come on to the next definition, next concept of placentation. This is very important topic for your exam and for your NEET exam also, for your CBSE exam also. Clear?
तो दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट अस बिगिन दैट व्हाट इज प्लेसेंटेशन. बेसिकली प्लेसेंटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. किस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है. नाउ आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू बाय गिविंग सो मैनी एग्जाम्पल. हम सब बहुत तरह के फ्रूट्स खाते हैं. ओके जब हम फ्रूट खाते हैं तो मैंने अभी भी बताया कि राइपेंड ओवरी इज़ द फ्रूट एंड राइपेंड सीड इज़ द राइपेंड ओव्यूल इज़ द सीड. तो जब हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में अगर हम उसको खाने बैठते हैं तो देखते हैं हम जो सीड्स की अरेंजमेंट है वो अलग अलग होती हैं. आप देखते हो लेमन में सीड्स अलग तरह से अरेंज्ड हैं, पी में सीड अलग तरह से अरेंज्ड हैं, ऑरेंज में सीड्स अलग तरह से अरेंज्ड हैं. तो ये जो पैटर्न है अरेंजमेंट का ओव्यूल्स का ओवरी में, या फिर हम आगे जाकर बोल सकते हैं कि सीड्स का फ्रूट में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन जनरली. लेकिन हम ओव्यूल्स का ओवरी में अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन बोलते हैं. So there are different types of placentation. They are marginal, axial, parietal, basal, central and free central. Okay, so how many types are there? I am again repeating: marginal, next one is axial, parietal, basal, central and free central. These are the different types of the placentation. Now we will study the placentations by the help of the diagram and their definition. Now the first type of placentation is marginal placentation. Here the placenta, it forms a ridge along the ventral suture of the ovary. Okay, and ovules, they are born on this ridge forming the two rows. आपने मटर देखा होगा. मटर को जब आप ओपन करते हो, मटर के पोड को जैसे आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको नीचे की तरफ वेंट्रल साइड है वहाँ पर आपको दो रिजेस दिखाई देती हैं. ओके, उस रिज के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? मटर के दाने लगे हुए होते हैं. ठीक है, रोज़ बनी हुई होती हैं. तो वो जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का मटर के अंदर, पी के अंदर, दैट अरेंजमेंट इज़ मार्जिनल. सिंपल सी लैंग्वेज में हम लर्न कर सकते हैं कि एक मार्जिन है, एक बाउंड्री है, उसके ऊपर सीड्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं. सो दैट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज़ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. उसके बाद when the placenta is axial and ovules are attached to its multilocular ovary. मल्टीलोकुलर ओवरी मतलब एक जगह पर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं मल्टीलोकुलर ओवरी. दैट प्लेसेंटेशन इज़ कॉल्ड एज एक्साइल. आप ये डायग्राम देख सकते हो. पहला जो डायग्राम है वो मार्जिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड डायग्राम है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 डिविजन्स बनी हुई हैं. हर एक डिवीज़न में एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है. तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं एक्साइल अरेंजमेंट. वी कैन सी दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन चाइना रोज़, इन टमाटो एंड लेमन. आप लेमन को बीच में से कट करिए, टमाटो को बीच में से कट करिए, आपको इसी तरह की अरेंजमेंट नज़र आएगी. ओके, नाउ कम दी next one, that is the parietal placentation. Parietal placentation, it is related with the peripheral part. Parietal word is related with the periphery, the boundary, the outermost area. तो peripheral placentation में जो ovules हैं they develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part बोल सकते हैं. यानी ओवरी के अंदर वाले हिस्से में ग्रो करते हैं या फिर ओवरी की बाहर वाली बाउंड्री बोल सकते हो आप इसे, वहाँ पर ग्रो करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द parietal arrangement. Okay, so this kind of parietal arrangement it is shown in the third diagram. आप देख सकते हो कि बाउंड्री के ऊपर अरेंज्ड हैं सारे के सारे पार्ट्स. ओके, नाउ
ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum. Example mustard and argyman. अब यहाँ पर आपको वैसे तो एक ही सेप्टा नज़र आ रहा है, एक ही हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये। ओके, तो एक फॉल्स सेप्टम बना हुआ है। क्लियर? तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। ओके, अब नेक्स्ट जो अरेंजमेंट आती है दैट इज़ फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल नाम ही बता रहा है when the ovules they are born on central axis and septas they are absent। तो कोई भी डिवीजन नहीं है। ओके, ओव्यूल्स बिल्कुल सेंटर में अरेंज होंगे और कोई भी डिवीजन नहीं है उनके बीच में। एग्जाम्पल इज़ डायंथस एंड प्राइमोर्स। ये फ्लावर्स हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ दी तो ये वाली जो प्लेसेंटेशन है इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट वन इज़ दी बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर जो प्लेसेंटा है इट डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओके, एंड इट बेयर्स ओनली द सिंगल ओव्यूल। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा? ओवरी के बेस में। एंड यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर जो ओव्यूल है वो कितना होगा? एक ही होगा। सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? सनफ्लावर। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन प्लेसेंटेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। तो आपने यहाँ पर प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन लर्न करनी है, ये डायग्राम्स लर्न करने हैं। ओके, एंड थर्डली इन सभी के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। ओके, नीट में क्वेश्चन आएगा कि आपको एक एग्जाम्पल गिवन होगा, पूछ लिया जाएगा कि ये इसमें कौन सी प्लेसेंटेशन है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ।